Hello everyone, welcome back. This is Dr. Deepak Rathod welcoming you in one more session of a chapter Internal Reconstruction. In another word, it is capital reduction. This is one of the easiest chapter of corporate accounting. See, my dear student, this is a last session of this particular chapter. Today we will solve one full-length practical example, a very big example, a very lengthy example today. And I guaranteed, if you solve this example with concepts clarity, you will be the master of this particular chapter. अगर आपको ये आज वाला एग्जाम्पल आ गया तो समझो आपको ये चैप्टर आ गया. बहुत लंबा एग्जाम्पल लेने वाले हैं. Almost all the examples will be covered. Almost all the adjustment will be covered in this particular example. तो कैपिटल रिडक्शन के लिए पहले भी हमने बात कर रखी है. क्या करना है? स्टेप्स याद रखना है. तो स्टेप्स जो भी है वो थियोरी पार्ट है हमारा. कैपिटल रिडक्शन अमाउंट ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढना है? कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइजेशन ढूंढना है तो यूटिलाइजेशन कैसे ढूंढेंगे? ये जो सब है ये आपका थियोरी पार्ट है. तो पहले आपको थियोरी पढ़नी है. 100% अगर आपको थियोरी आती है तो ये प्रैक्टिकल सब आपको आने वाला है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द मास्टर सम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिडक्शन. लेट्स सॉल्व द मास्टर सम टुडे. So let's read the practical example first. Following is the balance sheet of Arjun Company Limited as on 31st March 2020. Following is the balance sheet of Arjun Company Limited as on 31st March 2020. तो यहाँ पे बैलेंस शीट दे के रखी है हमारे पास. क्या है? देखो यहाँ पे ये सोर्सेस ऑफ फंड. इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 शेयर्स ऑफ रुपीज कैट ईच फुल्ली पेड अप 9 lakh. 10% preference shares capital 6,000 shares of rupees 100 each. Clear? तो ये हो गया हमारे पास प्रेफरेंस कैपिटल. फिर हमारे पास है रिजर्व्स एंड सरप्लस, कुछ नहीं है. फिर सिक्योर्ड लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 15% डिबेंचर्स, 8% बैंक लोन. And in current liabilities and provision we have creditors, bank overdraft and other current liabilities. Total of sources of fund is 37,40,000. So this is sources of fund. Application of fund means asset, fixed asset. We have goodwill, land and building, plant and machinery, furniture. Investment 2,75,000. Current assets, loans and advances. In that we have stock, debtors, other loans and advances. And at last, profit and loss account debit balance 2,95,000. Advertisement suspense account 2,70,000. Total is 37,40,000. तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के साथ हमारे पास क्या होगा? कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी. So look at the adjustments here. It is observed that the new product launched by the company has not succeeded even after 3 years of marketing. The management of the company is of the opinion that the assets and liabilities are not properly valued. To overcome this situation, following scheme of capital reduction, that is internal reconstruction, is sanctioned by the court. तो ये जो आगे वो कुछ दे के रखा है रीजन ऑफ रिडक्शन. ये आपको रीजन दे के रखा है कि एक कंपनी है जिसने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, वो मार्केट में नहीं चल रही है, तो वो अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. ठीक है. और उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स जो कोर्ट ने अप्रूव किए वो क्या है? सो लेट्स लुक एट हियर. प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू रुपीज 1,75,000 इज ऑब्सोलेट. प्लांट एंड मशीनरी की जो बुक वैल्यू है 1,75,000 वो अब कोई काम की नहीं है. दिस इज सोल्ड एज अ स्क्रैप फॉर 45,000. तो यहाँ पे 1,75,000 को सेल हो रहा है 1,45,000. तो यहाँ पे कुछ रिडक्शन हो रहा है. The auditors have
pointed that depreciation of plant is not provided to the extent of rupees 1,50,000. Depreciation कुछ है जो कैलकुलेट नहीं किया हुआ है. Stock includes items valued at rupees 1,10,000 which is sold at a loss of 50%. जो भी स्टॉक है उसके अंदर एक आइटम है जिसकी वैल्यू 1,10,000 है, उसको सेल्स हो रहा है. कैसे सेल्स हो रहा है? लॉस पे सेल्स हो रहा है. क्लियर? नेक्स्ट, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन एरियर्स फॉर 3 years. दिस अमाउंट इज नॉट पेएबल. जो एरियर्स है वो 3 साल के लिए, पर अगर ये पेमेंट करना है तो ही हमें इफेक्ट देनी है. दिस इज नॉट पेएबल. तो ये 4th नंबर का जो पॉइंट है, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हमारे पास कोई भी पेमेंट करना नहीं है तो कोई भी इफेक्ट आने वाली नहीं है. इंटरेस्ट ऑन लोन इज इन एरियर्स फॉर 2 years. जो भी बैंक इंटरेस्ट, बैंक लोन था हमारे पास 8% बैंक लोन, उसका जो इंटरेस्ट है वो 2 साल से एरियर्स में है. कंपनी एग्रीड टू पे हाफ ऑफ द इंटरेस्ट बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स. ये जो भी हम बहुत सारे आगे वाले एग्जांपल में किया है, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए जो भी एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे भी इफेक्ट देंगे वैसे ही इफेक्ट हमें इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए देंगे. हो गया? आगे, ऑल लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स आर टू बी राइट ऑफ. ऑल असेट्स एंड लॉसेस आर टू बी राइट ऑफ. The present realizable value of investment is rupees 1,95,000. तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कुछ नई वैल्यू दे के रखिए. नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस पेड फॉर इंप्लीमेंटिंग द कैपिटल रिडक्शन स्कीम इज रुपीज 20,000. तो ये हमारे पास कुछ नया है. आगे वाले कोई भी एडजस्टमेंट एग्जांपल में हमारे पास ये एडजस्टमेंट नहीं था. कैपिटल रिडक्शन एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं था, तो ये कुछ नया है. ठीक है. Next adjustment, the paid up value of equity shares is reduced to rupees 2 per share and preference shares to rupees 50 per share. Equity share में reduction, preference share में reduction दे के रखा है. However, face value remains unchanged. Face value तो 10 रुपए ही होने वाली है. Adjustment number 10, creditors are to be settled as follows: 20% immediate payment in cash, 40% amount cancelled, waive off, it means capital reduction, and 40% new for 16% debentures to be issued. जो भी क्रेडिटर्स है उसका ये एडजस्टमेंट दे के रखा है. 40% पेमेंट, 20% कैश पेमेंट, 40% वेव ऑफ, 40% को हम नए डिबेंचर्स दे रहे हैं. Other current liabilities includes 1,35,000 payable to directors remuneration. This liability is cancelled. क्लियर? तो ये हमारी हो गई अदर करंट लायबिलिटीज में कुछ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन के लिए हो गया इंफॉर्मेशन. अ कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर्स इज मेड. इट इज पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स. जो भी है 3 रुपए का कॉल मंगा रहे. 15% डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड फॉर इश्यू ऑफ 17,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 5 पेड अप फॉर कैश. अभी देखो ये हमारे पास एडजस्टमेंट क्या देके रखा है. डिबेंचर होल्डर जो थे उनको इक्विटी शेयर्स देना है. यहां तक होता पेड अप, फॉर कैश नहीं अमाउंट दिया होता तो डिबेंचर की जगह पे हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, पर यहां पे क्लियर कट दे रखा है डिबेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं फॉर कैश. तो ये सिंपली इफेक्ट हो गई इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स. 17,500 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 5 each. बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी पेड ऑफ इफ इट इज पॉसिबल. देखो इसको पे करना है. अगर रिड्यूस्ड बोला होता तो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दे, पर यहां पे बोला है कि पेड ऑफ अगर पॉसिबल है तो ये कब पता चलेगा पॉसिबल है कि नहीं? वो जब हम क्लोजिंग कैश बैलेंस ढूंढेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब पता चलेगा. एडजस्टमेंट नंबर 14 के लिए. एंड द लास्ट एडजस्टमेंट इज गुडविल इज टू बी राइट ऑफ. गुडविल जो भी दे के रखी है वो हमें राइट ऑफ करनी है. तो ये हो गया आपका मास्टर सम. ये हो गया आपका मास्टर सम. क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस, ओल्ड बैलेंस शीट and some adjustments, we have to prepare revised balance sheet. See here,
write journal entries in the books of company and prepare revised balance sheet as on 1/4/2020 after implementing the scheme of capital reduction. देखो यहाँ पे all calculations are shown as a part of answer. जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसको आपको दिखाना है एग्जाम्पल में सॉल्यूशन के लिए एज अ सॉल्यूशन. क्लियर? सो लुक एट हियर, वी हैव सम स्टेप्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. कौन कौन से स्टेप्स हैं? कैलकुलेट कैपिटल रिडक्शन, calculate capital reduction, calculate utilization, find out difference in step number 1 and step number 2, pass necessary journal entries in the books of company, prepare capital reduction account, prepare cash and bank account for finding out closing cash balance. ये आप अकाउंट भी तैयार कर सकते हो या फिर डायरेक्टली स्टेटमेंट भी तैयार कर सकते हो. एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर अ रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन. और ये हमें याद रखना ही है कि जब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तब ये वर्ड लिखना है बैलेंस शीट के बगल में, या तो एंड रिड्यूस्ड वर्ड लिखना है या फिर नीचे आफ्टर द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन ये लिखना है. तो ये हो गए हमारे स्टेप्स, ये हो गए हमारे स्टेप्स. अगर आप रेगुलर अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको ये आगे वाले सेशंस देखने पड़ेंगे. ठीक है? So let's solve all the adjustments first. जो भी एडजस्टमेंट है हमारे पास, कितने एडजस्टमेंट है? ये 15 एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट नंबर 1 प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट नंबर 2 प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट नंबर 3 इज रिलेटेड टू स्टॉक, एडजस्टमेंट नंबर 4 एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, एडजस्टमेंट नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, एडजस्टमेंट नंबर 6 all losses and fictitious assets are to be write off, adjustment number 7 related to investment, adjustment number 8 capital reduction expenses, adjustment number 9 that is capital reduction in equity share capital and preference share capital, adjustment number 10 creditors, adjustment number 11 other current liabilities, adjustment number 12 final call of rupees 3 on equity shares, adjustment number 13 issue of new equity shares, adjustment number 14 bank overdraft payment, and adjustment number 15 is about writing off goodwill. So this is a very lengthy example. देखो हार्ड नहीं है, लेंदी है, बड़ा लंबा वाला एग्जाम्पल है, कुछ हार्ड नहीं है. क्लियर? So let's do the solution of all the adjustments one by one. Adjustment number 1, plant and machinery having book value rupees 1,75,000 is obsolete. This is sold as a scrap for rupees 45,000. तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये 1,75,000 का वो सेल्स हो रहा है कितने में? 45,000 में. तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है हमारे पास 1,30,000. सो दिस इज यूटिलाइजेशन. The auditors have pointed out that ये एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आ गए. Auditors have pointed out that depreciation of plant is not provided to the extent of 1,50,000. अभी देखो बुक वैल्यू बैलेंस शीट के मुताबिक कितनी थी? 10,50,000. आउट ऑफ दैट ऑब्सोलेट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 1,75,000. उसमें कुछ रिडक्शन है दैट इज डेप्रिसिएशन 1,50,000. सो न्यू वैल्यू फॉर रिवाइज्ड बैलेंस शीट फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 7,25,000. क्लियर? सो ये जो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 उससे हमें क्या मिला? ये मिला यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये 1,30,000, 1,50,000, 2,80,000. न्यू बैलेंस फॉर रिवाइज्ड बैलेंस शीट
7,25,000 और सेल्स वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज एडेड टू द बैंक ₹45,000 ये हमें मिला. डन. Adjustment number 3. Stock includes items valued at ₹1,10,000 which is sold at a loss of 50%. तो यहाँ पे देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,10,000 वो सेल्स हो रहा है 55,000 में. तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा स्टॉक में रिडक्शन हो गया दैट इज यूटिलाइजेशन. तो यहाँ पे 55,000 टू बी रिसीव्ड इन बैंक सेल्स एंड 55,000 दैट इज यूटिलाइजेशन. लुक एट हियर. As per balance sheet, the value of stock is 4 lakh less book value of stock sold 1,10,000. So value of stock for new balance sheet is 2,90,000. तो यहां पे हमें क्या मिला? Reduction in stock 55,000. New value of balance sheet stock 2,90,000 and sales value that is addition to cash is 55,000. तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3. Moving further, adjustment number 4. Dividend on preference shares is in arrears for 3 years. This amount is not payable. तो देखो अगर पेमेंट नहीं करना है तो कोई इफेक्ट नहीं है. Preference dividend is in arrears for last 3 years. This preference dividend arrears is not payable, so no effect for capital reduction. Clear? Moving further. Adjustment number 5. Interest on loan is in arrears for 2 years. Company agreed to pay half of the interest by issuing equity shares. 2 साल का पहले तो इंटरेस्ट एरियर्स में है. देखो यहाँ पे 2 लाख बैंक लोन 8% फॉर 2 years दैट कम्स टू 32,000. तो ये हो गया 32,000. इसमें से कितना पेमेंट करना है? हाफ पेमेंट करना है. कंपनी अग्रीड टू पे हाफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स. तो ये 32,000 का हाफ कितना होगा? 16,000 इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड. सो वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर कैपिटल रिडक्शन इज 2. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 16,000 शेयर्स 16,000 rupees divided by 2 that comes to 8,000 shares of ₹2 each issued for interest on bank loan. मतलब बैंक लोन के सामने इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं. तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. एडजस्टमेंट नंबर देखो यहां से क्या मिला हमें? इंटरेस्ट ऑन लोन और इक्विटी शेयर्स हो गया. एडजस्टमेंट नंबर 6. ऑल लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी राइट ऑफ. ऑल लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी राइट ऑफ. तो यहां पे हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, दोनों को राइट ऑफ कर देते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 7. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,90,000. तो नई वैल्यू दे के रखी है. सो ओल्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर बैलेंस शीट इज 2,75,000. न्यू वैल्यू गिवन इन एडजस्टमेंट इज 1,95,000. सो यूटिलाइजेशन दैट इज रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट इज 80,000. एडजस्टमेंट नंबर 7 डन. Adjustment number 8. The expenses paid for implementing the capital reduction scheme is ₹20,000. तो ये सिंपली हो जाएगा हमारा यूटिलाइजेशन अमाउंट में ऐड. एक्सपेंसेस फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज एडेड टू यूटिलाइजेशन अमाउंट. तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 8. एडजस्टमेंट नंबर 9. The paid up value of equity shares is reduced to ₹2 per share and preference shares to ₹50 per share. मतलब 8 rupees reduction in equity share capital and 50 rupees reduction in preference share capital. So we have reduction in equity share capital ₹8 per share. 90,000 multiplied with 8 rupees per share that comes to 7,20,000. Reduction in preference share capital 50 rupees per share. So 6,000 shares at ₹50 each that comes to 3 lakh. Total 10,20,000. So this is adjustment number 9. Adjustment number 10. Settlement of creditors. Now look at here. Creditors are to be settled as follows. कैसे हो रहा है? 20% immediate payment, 40% waive off, 40% issue of debentures. तो out of this 4,40,000, 20% that is 88,000 is to be deducted from bank balance.
waived off is adjusted is addition to capital reduction, and for remaining 1,76,000 debentures are issued. देखो यहाँ पे दो इफेक्ट आपको पता है, एक तो कैपिटल रिडक्शन में और एक कैश एंड बैंक। पर ये जो नए डिबेंचर दे रहे हैं 16%, वो क्या हो जाएगा, नई बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो क्रेडिटर्स की जगह पे 1,76,000 डिबेंचर रहेंगे। नीचे लिखा है 16% डिबेंचर्स इज ट्रांसफर टू न्यू बैलेंस शीट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्रेडिटर्स, एडजस्टमेंट नंबर 10। मूविंग फर्दर, एडजस्टमेंट नंबर 11, अदर करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स रुपीज 1,35,000 पेएबल टू डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। दिस लायबिलिटी इज कैंसल, मतलब पे हो चुकी है। सो बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी इज गिवन 3,35,000, उसमें से ये जो है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे हो रहा है 1,35,000, सो दैट इज कैपिटल रिडक्शन। न्यू बैलेंस for other current liabilities in new balance sheet is 2 lakh. Adjustment number 12, issue of new equity shares. So this is a call of rupees 3 on 90,000 shares. So this is simply a receipt, 90,000 at rupees 3 per share, 2,70,000. Adjustment number 13, issue of shares to debenture holders for cash. So this is simply issue of 17,500 shares, 17,500 equity shares at rupees 5 each, 87,500. This is issue of shares simply. Adjustment number 14, adjusted in closing cash balance. This is bank overdraft. And the last adjustment is goodwill is to be write off. The utilization of rupees 1,20,000. Goodwill जो भी है बैलेंस शीट में दे के रखी है 1,20,000, उसको हम राइट ऑफ करेंगे। क्लियर? तो ये हो गए हमारे सभी एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट 1 to 15। हमने सभी एडजस्टमेंट्स का सॉल्यूशन किया। तो सॉल्यूशन करने के बाद ये जो भी है 15 एडजस्टमेंट्स, उसके बाद हमें क्या मिला, हमें कुछ ये मिल रहा है जो हमने कैलकुलेशन किया। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 45,000, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, सेल ऑफ स्टॉक 55,000, utilization of stock 55,000, equity shares issued for interest on loan rupees 16,000, profit and loss and advertisement suspense account is write off total 5,65,000, utilization of investment 80,000, capital reduction expense 20,000, that is utilization, reduction in equity and preference share capital total 10,20,000, paid to creditors in cash 88,000. Creditors of rupees 1,70,000 is waived off, capital reduction. 16% debentures of rupees 1,76,000 issued for creditors. Directors remuneration in other liabilities rupees 1,35,000 is capital reduction. Receipt of 2,70,000 from call of rupees 3 on equity shares. Number 15, issue of shares to debentures for cash rupees 87,500, so it is receipt in bank. Bank overdraft of rupees 2,65,000 is to be paid from cash balance, and the last is goodwill write off, that is utilization rupees 1,20,000. तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सब कहां से मिला है, जो हमने 15 एडजस्टमेंट दे के रखे थे उसका जो हमने कैलकुलेशन किया वहां से ये मिला। ठीक है? सो वी हैव सॉल्व्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स। Now we have to focus on the calculation of closing cash balance as well as equity share capital for revised balance sheet. So let's find out closing cash balance. देखो इतने एडजस्टमेंट है, यहां से कैश और बैंक वाला एडजस्टमेंट कितने हैं? Look at here, सेल्स ये इनकम होगी, ये सेल ऑफ प्लांट इनकम, सेल ऑफ स्टॉक ये भी इनकम, कैपिटल रिडक्शन एक्सपेंसेस ये पेमेंट, पेड टू क्रेडिटर्स ये भी पेमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम फाइनल कॉल ये हो गया इनकम, इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स इश्यू कर रहे तो इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज पेमेंट। तो ये हमारे पास इनकम मतलब रिसिप्ट्स और पेमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वी कैन फाइंड आउट क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है? ये तो 7 एडजस्टमेंट हमारे पास मिले थे कैश एंड बैंक के रिलेटेड। तो यहां से ओपनिंग बैलेंस 0, एड सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ स्टॉक, रिसिप्ट फ्रॉम फाइनल कॉल,
रिसिप्ट फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, तो ये सब हो गए हमारी रिसिप्ट। सेल ऑफ प्लांट 45,000, सेल ऑफ स्टॉक 55,000, फाइनल कॉल 2,70,000 and issue of shares to debenture holders 87,500. Total 4,57,500 minus payment of expense paid to creditors paid for bank overdraft, तो ये टोटल पेमेंट हो गया 3,73,000। तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट, ये हो गया पेमेंट। रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग कैश बैलेंस फॉर बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैश बैलेंस फॉर बैलेंस शीट। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो ये हमने सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो था हमारा वो हम कर चुके हैं। क्लोजिंग कैश बैलेंस फॉर रिवाइज्ड बैलेंस शीट 84,500। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। फिर से एक बार देखो, ये हमारे जो भी एडजस्टमेंट्स मिले थे उसमें से इक्विटी शेयर के रिलेटेड कौन से थे? बैंक लोन का जो इंटरेस्ट है उसके लिए हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, एक तो रिसिप्ट फाइनल कॉल हो रहा है और डिबेंचर्स को हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे तीन एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर न्यू बैलेंस शीट। देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन 16,000, रिसिप्ट ऑफ 2,70,000 फ्रॉम फाइनल कॉल, इश्यू ऑफ शेयर टू डिबेंचर होल्डर, और ओरिजिनल हमारे पास 90,000 शेयर्स थे। ठीक है, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ओरिजिनल शेयर्स हमारे 90,000 एट ₹2 ईच, फिर इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच, फाइनल कॉल 90,000 शेयर्स ₹3 ईच, एंड shares issued to debenture holders 17,500 shares at ₹5 each, 87,500. So total equity share capital in new balance sheet will be 5,53,500. अभी देखो यहाँ पे अलग अलग दे के रखे हैं हमें शेयर्स। कोई शेयर्स है जिसपे ₹3 है, कोई ₹5 है, कोई ₹2 है। तो ये 90,000 शेयर्स, ये 90,000 शेयर्स, ये ₹2 और ₹3 हो गए, और यहाँ पे 17,000 शेयर्स ₹5 पे हो गए। तो इसको अगर हमें लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 17,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यहां से 17,500 निकाल लो, तो इसमें कितने बचे? 72,500। ये 2 और ₹3 ₹5 हो गए। सो 17,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, 72,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ₹5 पेड अप। ये 3 और 2, ये दोनों का ओरिजिनल और फाइनल कॉल वाला। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के लिए जो हमने दे के रखा है 8,000 शेयर्स ₹10 ईच, ₹2 पेड अप 16,000। तो ये भी हमारा हो गया 5,53,500 टोटल शेयर कैपिटल फॉर न्यू बैलेंस। क्लियर? आई होप यू ऑल आर गेटिंग 100%। कंप्लीट हो रहा है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन सम स्टेप्स। ठीक है, क्या करना है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो हमारे पास स्टेप्स क्या है? कैलकुलेट कैपिटल रिडक्शन, कैलकुलेट यूटिलाइजेशन, फाइंड आउट डिफरेंस एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। So let's do it here. First step is calculate capital reduction amount. So for capital reduction we have equity share capital, preference share capital, waived off amount of creditors, and directors remuneration, that is liability paid 1,35,000. Total capital reduction is 13,31,000. This is step number 1. Step number 2, calculate utilization of capital reduction. So for utilization we have plant and machinery, loss on sales and depreciation, stock, interest on loan, profit and loss debit balance, advertisement suspense, investment, capital reduction expenses, and goodwill. So the total of utilization comes to 11,36,000. So this is step 1. Step 2. Now step 3, find out difference. So capital reduction is 13,31,000, step number 1.
Utilization 11,36,000. So the difference is 1,95,000, and this difference is transferred to capital reserve. This difference is transferred to capital reserve. Done. So these are 3 steps. Now we have to pass necessary journal entries. तो कितनी जर्नल एंट्रीज हमें देनी है, तो वो कहां से पता चलेगा, जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं हमारे वहां से पता चलने वाला है. तो कितने एडजस्टमेंट्स हैं, लुक एट हियर. वी हैव शेयर कैपिटल रिडक्शन, waive of amount for creditors, interest on bank loan agreed to pay, equity shares issued for interest on bank loan, capital reduction expenses payment, sale of plant, sale of stock, final call on equity shares, issue of equity shares to debenture holders for cash, utilization and balance transfer to capital reserve. So we have to pass this 12 journal entries here. Let's do the journal entries. So on the right hand side you have all the journal entries, list of journal entries, and on the left hand side we have actual journal entries. See here, for reducing share capital, equity share capital account debited 7,20,000, preference share capital account debited 3 lakh, to capital reduction 10,20,000. Reducing share capital. Creditors waive off their dues. So creditors account debited, other current liabilities account debited to capital reduction account. ये creditors waive off हो रहा है, ये current liability payment हो रहा है, a capital reduction. Interest on bank loan agreed to pay. So capital reduction account debited to interest on bank loan. एग्रीमेंट हो रहा है पेमेंट के लिए, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं. सो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. दिस इज फॉर इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. क्लियर. एंट्री नंबर 5, फॉर कैपिटल रिडक्शन एक्सपेंसेस एग्रीड टू पे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट, एंड फॉर पेमेंट कैपिटल रिडक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. This is for expenses of reconstruction. Sale of plant. So capital reduction account debited, cash and bank account debited to plant and machinery 1,75,000. Sales हो रहा है उसमें से 1,30,000, that is reduction. Sales हो रहा है 1,45,000. Next is sale of stock. Capital reduction account debited, cash and bank account debited to stock account. Next, final call on equity shares. So cash and bank account debited to equity share capital account. 90,000 शेयर्स पे 3 रुपए का कलेक्शन हो रहा है. फाइनल कॉल 2,70,000. शेयर्स इश्यूड टू डिबेंचर होल्डर्स फॉर कैश, सेम एंट्री, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. क्लियर. नेक्स्ट, फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडक्शन अमाउंट, the entry is capital reduction account debited to all the assets account. So here capital reduction account debited 9,15,000 to plant and machinery account, to profit and loss account, to advertisement suspense account, to investment account, and to goodwill account. And the last one is the balance transfer to capital reserve. Balance transfer to capital reserve. कितनी बैलेंस हम ट्रांसफर करने वाले हैं, 1,95,000. Look at here. So capital reduction account debited to capital reserve. Clear everyone? तो ये हमने कर दी जर्नल एंट्रीज, ये पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये हमारा हो गया. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. लेट्स प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. So this is a format of capital reduction account, particulars amount, debit side and credit side. तो जब हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे ट्रांसफर करना है, जो भी यूटिलाइजेशन होगा वो डेबिट साइड ट्रांसफर करना है, और कैपिटल रिडक्शन है वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है. इतना ही याद रखना है हमें.
कुछ ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? जो यूटिलाइजेशन होगा वो डेबिट साइड, जो कैपिटल रिडक्शन होगा वो क्रेडिट साइड। सो लुक एट हियर, यूटिलाइजेशन वी हैव प्लांट, स्टॉक, interest on loan, profit and loss, advertisement suspense, investment, capital reduction expenses and goodwill। ये हो गया यूटिलाइजेशन, ये हो गया अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। So this is the effect of all the transactions in capital reduction account. Now we have to close this account. क्लोज करेंगे तो यहां पे हमें बैलेंस मिल रहा है, तो बैलेंस कितना मिला था? 1,95,000। दिस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंस ट्रांसफर डन। दिस इज प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तैयार है। नाउ द लास्ट स्टेप, नाउ वी हैव द लास्ट स्टेप, prepare revised balance sheet after implementing the scheme of capital reduction. So look at here, this is simply a format. Balance sheet of Arjun Company Limited as on 1/4/2020 after the scheme of capital reduction. Sources of fund, application of fund. In sources of fund we have 4 heads: share capital, reserves and surplus, secured loans and long-term liabilities, current liabilities and provisions. In application of fund, we have 3 heads: fixed asset, investment and current assets, loans and advances. तो ये 7 जो हेड है मेन, उसके अंतर्गत हमें अभी इफेक्ट देनी है। सो लुक एट हियर, इक्विटी शेयर कैपिटल ये हमने पहले कर चुके हैं, पहले कैलकुलेशन किया है। 17,500 shares of rupees 10 each, 1,75,000. 72,500 shares of rupees 10 each, rupees 5 paid up, 3,62,500. 8,000 shares of rupees 10 each, rupees 2 paid up, 16,000. तो ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6,000 shares of rupees 50 each, 3 lakh। तो ये हो गया शेयर कैपिटल। इन रिजर्व्स एंड सरप्लस वी हैव कैपिटल रिजर्व, secured loans and long term liabilities we have 15% debentures, 16% debentures and 8% बैंक लोन। देखो डिबेंचर, ये जो 15% डिबेंचर और बैंक लोन है उसमें कोई चेंज नहीं है, पर ये नए डिबेंचर कहां से आए? ये जो 16% डिबेंचर्स है वो कहां से आए थे? देखो यहां पे 16% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 1,76,000 इश्यूड फॉर क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के लिए हमने ये 1,76,000 16% डिबेंचर्स हमारे नए आ गए। क्लियर? और उसके बाद में हमारे पास है अदर करंट लायबिलिटीज, दैट इज 2 lakh। सो दिस इज सोर्सेस ऑफ फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, secured loans and long term liabilities, current liabilities and provision. On the application side we have land and building new value 8 lakh, plant and machinery 7,25,000, furniture 45,000, investment 1,95,000, current assets, loans and advances we have stock, debtors, loans and advances with no change in value, and cash and bank balance amounted to rupees 84,500। ये हमने कैलकुलेट किया है। So this is balance sheet of Arjun Company Limited after implementing this scheme of capital reduction. Now इस वीडियो को यहां पे पॉज करो, आप इसका टोटल करो, make the total and find the total of both the sides. So here we have 26,24,500 for sources of fund, 26,24,500 for application of fund, and both the sides are tally. Clear, dear student? So this is how you can solve the master sum full length practical example of capital reduction, internal reconstruction. If you have any doubt in any question, kindly post a comment. I will get back to you once I get your comment, and will solve all the doubts which will be there in your
mind. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.